السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلورو کے کمار سوامی لے آؤٹ میں شکیل بن حنیف کی تبلیغ کرتے ہوئے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر ختم نبوت کے ذمہ دار مفتی سلیم صاحب، جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری امین صاحب، جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا شمیم سالک صاحب، انجمن اسلامیہ بن شنکری کے نیاز پاشا صاحب، سابق کارپوریٹر انصار پاشا صاحب اور دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ مقامی نوجوانوں نے بھرپور تعاون کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تمام ذمہ داروں نے کہا کہ عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ فیصلہ اس بات کا پیغام ہے کہ عقیدے پر حملہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس قدم کو عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی عقیدے کے تحفظ اور دینی ذمہ داری کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے، جس میں مقامی نوجوان اور ذمہ داران نے ایک جٹ ہو کر اپنا کردار ادا کیا گیا۔ حنیف کا فتنہ ہو یا دوسرے فتنے جس طرح عام ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کس طرح کی کوششیں جاری ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ بہت دنوں سے یہ فتنے یہاں سے دھیرے دھیرے چھپ چھپ کر کام کر رہے تھے۔ آج یہاں ہمارے چند ساتھی ان کا پیچھا کر کر کے ان لوگوں کو پکڑا گیا، اور آج یہ بیٹھک الحمدللہ مسجد نورانی میں الیاس نگر میں ہوئی ظہر کے فوراً بعد۔ تمام الحمدللہ جتنے بھی ساتھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ تب سے اب تک دوپہر یعنی صبح کوئی ناشتہ کیا ہے، کوئی کھانا بھی نہیں کھایا ہے، الحمدللہ تحفظ ختم نبوت کی محبت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت اور جو عشق کا ان لوگوں نے مثال آج پیش کی ہے، وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ یہ ذریعہ نجات بنائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمیں اس بات پر آج ہماری نسلوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ختم نبوت کیا ہے۔ یہ ہے کہ ہم سب بچوں کو سکھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے آگے یہ بھی سمجھانا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہماری نسلوں میں ہمیں روزانہ اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھ کر چند 10 منٹ ہی سے ہمیں ان عقائد کو ہمارے اولادوں میں لانا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی، یہ ایک فتنہ ہے جسے شکیل بن حنیف کے نام سے سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور وہ مہدی علیہ السلام ہے۔ یہ ایسے عجیب ذہنی بیمار جسے کہا جا سکتا ہے، ان کے پیچھے ماننے والے ایک ذہن خراب کرنے کے لیے معصوم، بے گناہ، بے علم، سیدھے سادے مسلمانوں کے یہاں جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے دوستی کرنا، پھر ان کو کھانے پینے کی لالچ دینا، پیسے کی لالچ دینا، پھر ان کو لے جا کر کے عقیدہ خراب کرنا اور ان کا ایمان خراب کرنا، یہ ان کا ایک مشن بن چکا ہے۔ یہاں یہ لوگ بٹ کر کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء کی طرف سے ہماری یہاں ختم نبوت کی شاخ تو شروع ہی سے کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ یہاں مفتی سلیم صاحب ماشاءاللہ، مولانا عبدالقدیر صاحب، یہاں کے ہمارے پورے 35 مساجد کے ذمہ دار ہمارے نیاز پاشا صاحب ہیں، اور ہمارے انصر بھی کہاں ہیں؟ انصر بھی ہیں، ہمارے فیاض بھی ہیں، ہمارے منہاج نگر کے صدر صاحب ہیں۔ تمام مساجد کے ذمہ دار ماشاءاللہ صبح سے اس کام میں لگے ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ ان لوگوں کو یہاں FIR ان پر درج ہوا ہے، اور انشاءاللہ ان کو کل کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ان کے اوپر جس ایکٹ میں ان کو لگایا گیا ہے کئی سال کی سزا بھی انشاءاللہ ان لوگوں کو ہوگی۔ اس کے لیے جمعیت علماء اور یہ تمام احباب ہم سب مل کر کے اس کے پیچھے لگے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ ان ظالموں کو اس کی سزا مل سکے انشاءاللہ۔ آپ حضرات میرے علاوہ ہمارے ان بزرگوں کو بھی سنیں جو ہمارے لیے یہاں صبح سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ہمارے مفتی سلیم صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی بات کو رکھیں۔ اچھا
मौलाना शमीम साहब हमारे नायब सदर हैं जमीयत उलमा कर्नाटक के, मौलाना भी और हमारे नयाज पाशा साहब और हमारा अंसर भाई सब थोड़ी थोड़ी देर अपनी बात को रखेंगे। आप हजरात ज़रूर से मुलाहिज़ा फरमाएं। ये FIR की कापी है जिस पर आज कार्रवाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुमार स्वामी पुलिस स्टेशन में उनको हवाले किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कापी मिली है। इंशाअल्लाह इस पर इंशाअल्लाह सारे मिल करके इसके ख़त्म करने तक इंशाअल्लाह इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं मौलाना आज कुमार स्वामी पुलिस स्टेशन में आप आए हैं, किस तरह की कार्रवाई कहाँ तक आपको इत्मीनान हुआ? दोपहर से आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम अहलियाने बनशंकरी के मुसलमानों के लिए खुशखबरी के बात है कि बातिल फ़िरक़ा के 2 मुबल्लिग गुमराह नौजवान रंगों हाथ गलत तबलीग फ़िरक़ा बातिला की तबलीग करते हुए पकड़े गए। लेकिन हम नौजवान बहुत ही जज्बात और संजीदगी को काबू में रखते हुए हक़ व बातिल का इम्तियाज़ किया गया। उन दोनों गुमराह जालिम मुबल्लिग जो हमारे इस्लाम पे, हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत व सुन्नत पे जो गलत दलाइल पेश कर रहे थे, हमने कुरान व हदीस से जो है जवाब दिया। और इंशाअल्लाह यहाँ का जो मसला भी हुआ FIR, हम इंडियन पैनल और क़ानूनी एतबार से ही हम लोग जो है इस काम को अंजाम दिया है ताकि आइंदा ऐसे गुमराह और जो हिंदुस्तान में पीस को भंग करता है और जो हिंदुस्तान में नौजवानों को, इंसानों को इंसानियत के नाम पर गुमराह करता है, इख्तिलाफ के बाइस बनता है, तो इस तरह हर जगह अगर काम होते रहे, ऐसे जालिम गुमराह गुस्ताख मुबल्लिग को पकड़ा जाएगा तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में अमन भी आएगा और हर मज़हब वाले अपने अपने मज़ाहिब में बहुत अच्छी तरह अमल करेंगे। और हमारा मज़हब भी यही सिखाता है कि हर मज़हब वालों को हम एहतराम करें। लेकिन इन जालिम मुबल्लिग, गुमराह मुबल्लिग जो शकील बिन हनीफ, कादियानियत, गौहर शाहिर जो नाम नहाद सस्ती शोहरत के लिए गरीबों को, भोले भोले नौजवानों को जो कुछ पैसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं और हिंदुस्तान के माहौल को, जो हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, अमन का गहवारा है, इसको जो ख़राब करते हैं, इंशाअल्लाह ये बातिल को पकड़ लेंगे लोग, हक लोग पकड़ेंगे। और हिंदुस्तान की हुकूमत भी ऐसे मसाइल में कानूनी एतबार से हमारे साथ है। जैसा कि हमने मुहिबुल्लाह अमीन साहब जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका जो है आपको FIR कापी देखा है। इंशाअल्लाह खुशी के बात है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए इंशाअल्लाह हम जान माल जो भी हो इसके लिए हम तैयार रहेंगे। अब बातिलों का सर खम ज़रूर करेंगे। ज़मीनी सतह पर किस तरह काम होगा जमीयत की तरफ से? हाँ, तो देखिए जमीयत का ताल्लुक़ तो आप जानते हैं, उलमा भी मौजूद है और जितने भी लोग हैं हर कोई जानते हैं। जमीयत शुरू से ही, रोज़े अव्वल से ही हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी हो, हज़रत मौलाना शाह अताउल्लाह साहब हो, हज़रत मौलाना हुसैन मदनी हो, हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम हो, हज़रत मुफ्ती आज़म किफ़ायतुल्लाह साहब हो, बड़े बड़े उलमा जब भी इस तरह के दज्जाल, कज्जाब, झूठा, मक्कार, दुनियावी फ़ायदा के लिए नामूस रिसालत पे दाग लगाया है, तो हमारे अकाबिरीन हत्ता के हमारे बिरादरान वतन के हिंदू भाई भी इन गद्दारों पे लगाम लगाया है। हमारे बिरादरान वतन को भी मालूम है कि हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आपके ही सुन्नत पे हम ज़िंदगी गुजर कर मर जाएंगे। मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान में पहली मरतबा शहीद हनीफ के ऊपर FIR हुई है, किस तरह की मेहनत रही यहाँ, किस तरह आपको इत्मीनान रहा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे लिए, मसाजिद के तमाम ज़िम्मेदारों के लिए, हल्क़े बनशंकरी के तमाम नौजवानों के लिए ईद का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। इसलिए कि हम सबको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो कामयाबी ये है कि नबी के गद्दार, गुस्ताख़ रसूल, ईमान के डाकू, ईमान के लुटेरे सुन्नती लिबास का लुबादा पहनकर हमारे मुसलमान नौजवान भाइयों को तबलीग करते हुए हमने देखा, तो उनको पकड़कर आज हमने जो है उनको कैदो बंद में रखा है, FIR उनकी कराई गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह
आज से 5 साल पहले मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्क़ा इलियास नगर कायम हुई थी। मजलिस के प्लेटफार्म से बातिल अक़ाइद, बातिल फ़ितनों से उम्मत को, ईमान को बचाने की बहुत सारी कोशिशें की गई और फ़ितने शकीलियत, क़ादियानियत, गौहर शाहियत से उम्मत को आगाह करते रहे। लेकिन जब आज उम्मत ने, मुसलमानों ने, ज़िम्मेदारों ने, नौजवानों ने अपने आँखों से फ़ितने शकीलियत की तबलीग को देखा तो सब बेदार हुए। पहले भी बेदार थे, एहसास था, आज और भी ज़्यादा बेदार हुए, और भी ज़्यादा एहसास हुआ और हम सब ने यह अज़म किया है इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खिदमत करेंगे और अपने इलाक़े में नबी के किसी गद्दार को दाखिल होने नहीं देंगे और अपने एक एक नौजवान को, एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को, मर्द औरत को इंशाअल्लाह उनके ईमान की हिफाजत के लिए हम सब खड़े होंगे। जिस जिस तरीक़े से अकाबिर हमें नसीहत करते रहेंगे, तरीक़ाकार बताते रहेंगे, इंशाअल्लाह उस पर हम अमल करेंगे। और जैसे कि अभी सवाल किया गया कि आज किस तरह से FIR कराया गया, मुख्तसर सी बात यह है कि जो 2 मुबल्लिग, फ़ितने शकीलियत के जो मुबल्लिग है जिनको आज FIR करा के जेल में रखा गया है, इन्होंने बड़े ही अजीब और गरीब तरीक़े से, हिकमत से, प्यार मोहब्बत से 4 महीने से सरबंद पार्लिया में आकर जो है फ़ितने शकीलियत की तबलीग करते रहे। और जिस नौजवान को ये तबलीग करते रहे, आज से 5 दिन पहले हमें कॉल आती है और ये बताया जाता है कि काने दज्जाल के बारे में, इसी तरह क़ियामत की अलामत के बारे में इस तरह हमको सुना रहे हैं, तो हमने भांप लिया कि ये फ़ितने शकीलियत है। फिर हमने बहुत ही अजीब व गरीब तरीक़े से सरबंडा पार्लिया में इन 2 नौजवानों को, एक तो बस स्टैंड में पकड़ लिया गया और एक नौजवान को टेलर की दुकान में जो है पकड़ लिया गया और इन दोनों को पकड़ने का मकसद इनको मारना, इनको धमकाना नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने, मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने, जमीयतुल उलमा ने, नौजवानों ने बड़े ही प्यार मोहब्बत से अच्छी तरह से समझाया कि शकील बिन हनीफ ना ईसा अलैहिस्सलाम है ना महदी अलैहिस्सलाम है। उनकी हर दलील को तोड़ते रहे, अपनी हर दलील को कुरान हदीस से साबित करते रहे, लेकिन उनका एक ही जवाब है, तुम जो चाहे कर लो, हम शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब, दज्जाल, मलऊन, दोज़खी, हरामी, नालायक को ईसा मानेंगे, महदी मानेंगे, ये उनका दावा है। तो इसलिए मेरी मजलिस के प्लेटफार्म से और तमाम इन ज़िम्मेदारों की तरफ से तमाम इलाक़े को, तमाम इंडिया को ये गुजारिश मैं करता हूँ इंडिया से कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के मुबल्लिग, झूठी नबूवत के दावे को फैलाने वाले, फ़ितने की तबलीग करने वाले आपको नज़र आएँ, आप देखें तो मसाजिद के ज़िम्मेदार उलमा के पास लाएँ और उनको इसी तरह का FIR करा के अंदर करवा दे। जगह जगह ये होता रहेगा तो इंशाअल्लाह बेंगलुरु ही से नहीं, कर्नाटक ही से नहीं, पूरे इंडिया से इंशाअल्लाह फ़ितने ख़त्म हो जाएंगे और हमारी नस्लें इंशाअल्लाह अपने ईमान की हिफाजत करने वाली हो जाएंगी। ये इस प्लेटफार्म से आज तमाम ज़िम्मेदारों की, नौजवानों की तरफ से ये पैगाम आपको सुनाया जाता है। और दूसरी बात यह है, जगह जगह अल्लाह के वास्ते ज़िम्मेदारों को ख़ास तौर से कहता हूँ, तमाम ज़िम्मेदारों को अपने अपने मसाजिद में हफ्ते में 1 मरतबा दरसे अक़ाइद रखें, अक़ीदों का सबक रखें, अपने अपने मस्तूरात के इज्तिमा में दरसे अक़ाइद रखें, समझाएं कि अक़ीदा हज़रत ईसा के बारे में कैसा होना चाहिए, महदी के बारे में कैसा होना चाहिए। ये लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से नई नई बातें सुनकर हमारे नौजवान मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद जमीयत वालों का, जितने भी यहाँ सदर, सेक्रेटरी, जितने भी मोहल्ले के हैं, उनका सब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस काम में सवेरे से लगकर इस काम को मुकम्मिल कामयाब करके उनके ऊपर FIR करके अभी हम लोग बाहर निकले हैं। मैं मेरे तरफ से अब जो भी बोलना चाहिए था उलमाए कराम ने बोल दिया है, मैं ज़्यादातर नहीं बोलूँगा। मेरी एक गुजारिश क्या है, हर मोहल्ले के कमेटियों से मेरी एक गुजारिश है और हर मोहल्ले के नौजवानों से गुजारिश है कि अपने ईमान को बचाए रखे, अपने ईमान को हिफाजत करे। हमारा ईमान आज ख़तरे में है, इस ख़तरे को दूर करे।
इन जैसे मुनाफिकों को यहाँ से मार भगाएं। और जो भी मोहल्ले में है नौजवान साथी और सदर और सेक्रेटरी जो भी हैं, उनके ज़िम्मे होता है कि उनके मोहल्लों का वो भरपूर ख्याल रखे, नौजवानों को साथ में लिए। कोई नया आदमी कहीं से भी आ रहा है, मुसाफिर बन के आ रहा है, कोई इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ के आ रहा है, जुब्बे में और लिबास ऐसा बेहतरीन लिबास पहन के आ रहा है, वो लिबास के अंदर मुनाफिक छुप कर आ रहे हैं। उन मुनाफिकों से बचकर रहे, उन मुनाफिकों को पहचानने की कोशिश करे, और वो जो भी मुनाफिक ऐसा मिलेगा उसको कानून के हवाले करे। अपने हाथ में कानून ना ले, कानून के हवाले करे। जैसा कि हम लोगों ने आज इस काम को अंजाम दिया है, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर कूचे में इस बात का ख्याल रखे कि कोई मुनाफिक हमारे मोहल्ले में ना आ जाए। कोई भी नया आदमी आता है, मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ पहले उसकी छानबीन करे कि वो कौन से मजहब से ताल्लुकात रखता है, किस पे वो ईमान रखता है। पहले उनसे ये ताल्लुकात जो भी है ताल्लुकात रखता है, उससे जानकर पहचान कर उसको बात करे, उससे दोस्ती बनाए। उसको जानने और पहचानने के बगैर कोई किसी का दोस्त ना बने, और कोई आकर उसको अच्छी दावत भी दे तो उसकी दावत में ना जाए, और उनके गुमराह करने वाले बातों में ना आए। मैं नौजवानों से खासकर मैं गुजारिश करता हूँ, अपने अपने मोहल्लों को, अपने अपने गलियों को, अपने अपने घरों को संभालने की कोशिश करें। और अपने माँ बाप से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि उनको जानना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कौन से रास्ते पे जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे ताल्लुकात रख रहा है, ये सब जानना चाहिए। अपने बच्चों को एहतियात में रखिए, अपने बच्चों की निगरानी करिए, जब जाकर हम कामयाब होंगे। और हमारा सब जो है, हम ना ईमान पर मौत आए, ये अल्लाह से दुआ करता हूँ। ईमान मजबूत रखे, सब अपने अपने ईमान को मजबूत करें। यहाँ किस तरह की कार्रवाई हुई, आइंदा ऐसा करने वालों के लिए क्या सज़ा है? आज तो आप देख लिए ना, जो भी मिलेगा उसको पहले जो हम करना करेंगे, उसके बाद लेकर के कानून के हवाले करेंगे। आज की कार्रवाई जो है, हमारे इलियास नगर के नौजवानों ने और सदर और सेक्रेटरियों ने, बहुत सारे मसाजिद के जिम्मेदार हैं, जो अक्ल से काम लिए, जो सब्र से काम लिए, उस तरीके से काम ले, कानून को अपने हाथ में ना ले, कानून के तहत उनको लेकर कर कानून के सुपुर्द कर दे। देखेंगे इंशाअल्लाह कानून से उनको जो सज़ा मिलेगी हमें मंजूर है, और इसके पीछे जो है हम लगे रहेंगे। और हर मोहल्ले में, अब दूसरी बात क्या है बोले तो, ये 3 फराद थे, 3 आदमी थे, इसमें 2 आदमी अभी कानून की शिकस्त में है, एक आदमी फरार है, शिकंजे में है, एक आदमी कानून फरार है। इंशाअल्लाह पुलिस उसको भी गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करके उसको भी जेल तक पहुंचाएगी। यह कानून से हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये काम ज़रूर होगा। रहमतुल्लाहि बरकातहू। खासकर अब तो जो उलमा कराम और हमारे सर डिटेल आपको समझा दिए गए हैं, मैं आपके माध्यम से आपके न्यूज़ से एक बात पहुंचाना चाहता हूं। ख़त्म नबूवत के बारे में बहुत कुछ काम हुआ है। मैं चाहता हूं उलमा कराम से मेरी आज़ीज़ाना गुजारिश है, बराए मेहरबानी हर जुमा में एक 10 लाज़े हुजूर के सारे उम्र के बारे में बात बताएं, हिस्ट्री बताएं, और उनका पोजीशन, उनका नाम, ये सब बताना है। अब हम लोग जुमा में हर तरह के बयान देते हैं, ख़त्म नबूवत के बारे में नहीं बताते, और बहुत से नौजवानों को उसके बारे में मालूम भी नहीं है। हम मिलाद करते हैं, हम जलसे करते हैं, जोश में रहते हैं, होश में नहीं रहते। अब ख़ास कर ये काम, ये जो फितने को रोकना रहे तो ये काम मसाजिदों से होना है। फ़र्क़ों में बंटना ख़त्म करें, सब मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसे इन ज़ालिमों का निस्तो नाबूद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। माशाअल्लाह, हमारे सारे इलाक़े के ज़िम्मेदारान और अमाइदीन इलाक़ा और उलमा इकराम और पूरे सूबे के जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के जनरल सेक्रेटरी अमीन साहब, जनाब अमीन साहब, और नायब सदर मौलाना शमीम सालिक साहब, और हमारी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्का इलियास नगर बेंगलुरु के ज़िम्मेदारान मुफ्ती सलीम साहब, मौलाना हुमायूं साहब, मुफ्ती जो है मुज़म्मिल साहब,
اور ساتھی ہیں اور دوسرے بھی ہمارے نوجوان ہیں پورے الیاس نگر کے. اصل جو ہے یہ وقت بڑا نازک وقت ہے. ہر جگہ فتنوں کا دورہ چل رہا ہے اور ہر جگہ جو ہے اللہ کا نام لے کر اللہ سے دور کیا جا رہا ہے. اللہ کے بندوں کو نبی کا نام لے کر نبی سے دور کیا جا رہا ہے. نبی کے دین سے بغاوت کی جا رہی ہے. تو اس بات کو سمجھنی چاہیے. پہلے کے فتنوں کا جو رنگ اور ڈنگ تھا وہ الگ تھا. اب کے جو فتنے آ رہے ہیں ان کا رنگ ڈنگ الگ ہے. پہلے جو فتنے آتے تھے وہ کسی عمل پر لے کر آتے تھے کہ یہ عمل کریں یہ عمل نہ کریں, یہ اس طرح ہو یہ اس طرح نہ ہو. لیکن اب جو فتنے ابھر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے عقیدے پر اپنے ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ جیسے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہ ایک ہے, اکیلا ہے, وہی وہ ایک ذات ہے جو ساری کائنات کو پیدا کی ہے. لیکن ایک فتنہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بھی کوئی رب ہے. نعوذ باللہ. اس بات کو سمجھنا چاہیے ان فتنوں کو. اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ آج کے جو فتنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہے, جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا. اسی طرح اور بہت سارے فتنے ہیں. تو اس لیے ہماری ادباً گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے اور اپنے ماں بہنوں سے کہ اپنے گھروں میں جو ہے اپنے بچوں کی نگرانی کریں, ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور بچوں کو مکاتب سے جوڑیں, ان کے عقائد کی فکر کریں. یہی بس ہماری گزارش ہے. انشاءاللہ اگر اس سے جڑے رہیں گے تو کام ہوتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.